پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ اشارہ فرمایا کہ ایک تیر 3 لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ جس نے تیر بنایا، دوسرا وہ جس نے تیر بنانے میں مدد کی، اور تیسرا وہ جس نے راہ خداوندی میں وہ تیر چلایا۔ یہ حدیث انٹرپرینورشپ کے ریئل پرسپیکٹیو کو ڈیفائن کرتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ میں انٹرپرینور بننے سے پہلے تیر بنانے والے کا مددگار بنتا ہے، ٹیکنالوجی کا مددگار بنتا ہے۔ یہ جو خواب ہمارے ہاں دکھائے جاتے ہیں مینجمنٹ کی اسکولوں میں، مینجمنٹ کے کالجز میں اور مینجمنٹ کی 20 کتابوں میں کہ آپ کچھ جانے نہ جانے آپ اپنا بزنس شروع کر دیں، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے۔ unless you are capable enough, you are competent enough اور آپ نے وہ نیسیسری اسکل سیٹ اپنے اندر ڈیولپ نہ کی ہو، تب تک آپ کو کسی کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر جو چیز آپ کے اور ان کے درمیان کام کرے گی وہ باہمی اعتماد ہے، وہ باہمی ریلائبلٹی ہے۔ ریلائبلٹی کے تار کو کبھی بزنس میں توڑنے کی کوشش نہ کیجئے۔ ایک مرتبہ اگر یہ تار ٹوٹ جائے زندگی بھر آپ پر یہ کلنک لگ سکتا ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ کام کیا اس کے بھروسے کو توڑ ڈالا۔ یہ بہت اہم پہلو ہے جسے ذہن و گمان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ تیر بنانے میں جو مدد کرتا ہے آگے جا کر وہ خود بھی تو تیر بنانے والا بنتا ہے۔ یہاں اس اسکل سیٹ کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو مارکیٹیبل اسکل ہوتی ہے۔ دنیا صرف اسکل کی بات کرتی ہے، رفاہ مارکیٹیبل اسکل کی بات کرتا ہے، اس ویبل اسکل کی بات کرتا ہے جس کی سماج میں، سوسائٹی میں اہمیت ہو، اور جب تک یہ اسکل آپ کے اندر ڈیولپ نہ ہو آپ خواب تو دیکھتے رہیں گے، ایک ہورائزن کی طرف آپ کی نگاہیں تو ہوں گی لیکن آپ ایک صحیح وقت کی تلاش میں رہیں گے، اور جب وہ موقع ملے گا تو سچے معنوں میں آپ آگے بڑھیں گے۔ اسی لیے کبھی میں نے غالباً راجکوٹ میں یا کہیں کہا تھا کہ انٹرپرنر یہ موقع پرست نہیں ہوتا، یہ موقع شناس ہوتا ہے۔ موقع پرستی میں اور موقع شناسی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انٹرپرنر is never an opportunist, he is an opportunity seeker۔ وہ اپارچونٹی کی تلاش میں کھڑا رہتا ہے، وہ اس بات کی جستجو میں لگا رہتا ہے کہ کون سا ایسا موقع ہے جس میں باہمی اعتماد کو بروئے کار لا کر آگے بزنس میں قدم بڑھا سکوں۔ یہ وہی پہلو ہے، یہ رفاہ کا دوسرا اعتمادی پرچہ ہے جو رفاہ کے ہر ممبر کو نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اعتماد کی کمی ہے، اور رفاہ آپ کے لیے ریلائبلٹی کی بھٹی ہے۔ جس نے رفاہ میں اپنی ممبرشپ درج کر دی اس نے بحیثیت انٹرپرنر کے اعتماد کے گروپ میں، رفاہ کی ریلائبلٹی گروپ میں اپنا نام درج کر دیا۔ اب امت اس کی طرف بھروسہ مندی کی نگاہیں اٹھاتی ہے، اب امت اسے بھروسہ مند انویسٹر سمجھتی ہے، اب امت اسے بھروسہ مند بزنس سمجھتی ہے جس پر اس کا سرمایہ لگایا جا سکے، یا پھر بھروسہ مند کولیبریٹر یا پارٹنر سمجھتی ہے۔ یہ نوجوان بزنس مین کے لیے تیسری سیکھ ہے جو رفاہ کے پلیٹ فارم پر نصیب ہوتی ہے۔ آگے بڑھیے، رفاہ نے، کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا، موقع کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے اچھی بات کہی، آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر۔ یہاں ملنے والا ہر ریفرل، یہاں ملنے والا ہر ریفرنس آپ کے لیے موتی کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب آپ اس موتی کو صحیح انداز میں استعمال کریں گے اب وہ موتی موتی نہیں رہتا۔ شعر کا اگلا حصہ سنیے، آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی اس عطوں میں سمندر تلاش کر۔ ذرہ یہ چھوٹا سا ریفرل ہے، اس چھوٹے سے ریفرل کو آپ اگنور نہ کریں، آپ اس پر کریپ آن کریں۔
एंटरप्रेन्योर क्रीपर होता है, वो उस कद्दू की बेल की तरह होता है जो किसी मजबूत तने में या उसकी छांव में अपनी शनाख्त बनाती है और जब आगे बढ़ती है तो फिर उस दरख्त से कहीं ज्यादा मोटे मोटे फल इंसानियत को देती है। ये एंटरप्रेन्योर है और ये हैयत, ये कैफियत आपकी निगाहों में आपको वाज़े हो जानी चाहिए। ये आपका मुकाम और मर्तबा है। चुनाचे कतरे की उस अतों में समंदर तलाश करने और जर्रे की उस अतों में तफसीर कायनात पूछने का कॉन्सेप्ट इस जमीन पर अगर कोई लिख पाता है तो वह एंटरप्रेन्योर ही है। आगे बढ़िए। रिफाह में एंटरप्रेन्योर के लिए रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, उसके बिजनेस के खड़ा करने के लिए पॉसिबिलिटीज भी हैं। अब आगे जाकर कल की तकरीर में जो बात मैंने कही थी उसे मैं दोबारा रिकैपिटुलेट करता हूं, बिकॉज इट हैड गॉट फ्यू पॉइंट्स विच आर एब्सोल्युटली रेलेवेंट फॉर दिस गैदरिंग एज वेल। मैंने अर्ज किया था कि रिफाह में पर्सनल लेवल पर एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बनाया जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे जो एजुकेशन स्लॉट्स बिजनेस मीट्स में होते हैं, हम जिस तरीके से नौजवानों की ग्रूमिंग करते हैं, हम जिस तरीके से उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं, आप जानकर ताज्जुब होंगे कि पूरी ज़हनियत एक एंटरप्रेन्योर की ज़हनियत बनाई जाती है जो खतरा लेने के लिए तैयार है, जो खतरे से दो चार होने के लिए तैयार है। याद रखें, जब तक रिस्क फैक्टर के लिए आप तैयार ना हो तब तक आप कभी भी एक कामयाब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। और आपके रिस्क फैक्टर के लिए रिफाह का पूरा प्लेटफॉर्म मौजूद है। यह तजुर्बाकार अहबाब गिरने से पहले आपको थामने के लिए बेताब है। ये आपको ठोकर खाने से पहले आपको हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार हैं। ये वो कोहेजन है जो दुनिया के किसी भी बिजनेस प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता। इसीलिए हमने ये कहा कि रिफाह महज बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं। नौजवान एंटरप्रेन्योर सुन लीजिए, रिफाह महज बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है। रिफाह सच्चे मायनों में अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, एक नजरियाती कुव्वत है, एक नजरियाती ताकत है। और यह नजरियाती कुव्वत और ताकत आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को आगे ले जाने वाली है। एंटरप्रेन्योर की जर्नी सिर्फ यही जर्नी नहीं है। आप इस पर्सपेक्टिव से ना सोचें कि महज यहां आकर आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, नहीं, इन सवों लोगों ने आपके इंट्रोडक्शन को सुना। नाउ दे आर गोइंग टू बिकम योर गेम प्लानर्स, दे आर गोइंग टू बिकम योर गेम प्लानर्स। ये गेम प्लानिंग रिफाह में होती है और इसके जरिए लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर देखिए, एक फर्द बिजनेस में मेरा हाथ तो पकड़ ले, लेकिन इकोसिस्टम मौजूद ना हो तो एक बड़ा काम नहीं किया जा सकता। इकोसिस्टम रिफाह देता है, यह कलेक्टिव लेवल पर है। इंडिविजुअल लेवल पर रिफाह गिव्स यू द एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट एंड कलेक्टिव लेवल पर रिफाह गिव्स यू द एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम और माइंडसेट के दरमियान जो काफिला चलता है, ये कामयाबी की तरफ रवां दवा काफिला है, जिसे अपनी मंजिल वक्त से पहले मिल जाती है। किसी ने कहा, अगर आपको जल्दी जाना हो तो अकेले चलें, और अगर आपको दूर जाना हो तो सबके साथ चलें। रिफाह ने यह कॉन्सेप्ट अपने मेम्बरान के दरमियान ज़हनी तौर पे बिठा दिया। कीथ फेराजी ने, जो मास्टर नेटवर्कर कहलाते हैं, किताब लिखी नेवर ईट अलोन। कीथ फेराजी की यह किताब नेवर ईट अलोन वाज़े करती है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअली कभी अचीव किए ही नहीं जा सकते। इसके लिए कलेक्टिविज्म चाहिए, एक इज्तिमाइयत चाहिए। और यकीन माने, जिस इज्तिमाइयत पर अल्लाह का हाथ हो, जिस इज्तिमाइयत के अहबाब बाहमी एक दूसरे के रफीक़े कार हों, उनके दिलों में सच्चे मानों में मोहब्बत की फिजा पाई जाती हो, आप उस इज्तिमाइयत का क्या कहेंगे? किसी कहने वाले ने अच्छी बात कही, चलो अब ऐसा करते हैं, चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे तोड़ लाते हैं, जरूरत के मुवाफिक हम सहारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे तोड़ लाते हैं, जरूरत के मुवाफिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। खसारे बांट लेते हैं, मुनाफे छोड़ देते हैं।
रिफाह एक ऐसे सफर का नाम है। रिफाह की एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस गाइडेंस में 2 डिपार्टमेंट्स हैं या 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल EDC या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बजाते खुद चेयरमैन ऑफ रिफाह इज सुपरवाइजिंग इट, डिराइविंग इट, ही इज मॉनिटरिंग इट, ही इज मेंटरिंग इट। तो अगर आपको चेयरमैन ऑफ रिफाह से मुस्तफीद होना है तो आप EDP के तहत चलने वाले बहुत सारे कामों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये EDP है जो नए तुज्जार के लिए, प्रोस्पेक्टिव थॉट प्रोसेस रखने वालों के लिए और तिजारत को लेकर आगे बढ़ने वालों के लिए एक दिशा, एक रुख, एक समते सफर, एक कैफियत से आपको हमदोश करती है। दैट्स EDP। एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस गाइडेंस का जो दूसरा सेक्शन है यह बिजनेस गाइडेंस है कि आप में से कोई 1 करोड़ का व्यापारी है, उसे 10 करोड़ तक पहुंचना है। कोई 10 करोड़ का काम कर रहा है, उसे 25 करोड़ का ख्वाब नजर आता है। ये विजन की बढ़ोतरी और ये तसव्वुरे तिजारत का एक आला पैमाना, रिफाह में इसकी भी ट्रेनिंग होती है, मेंटरशिप होती है और रिफाह ये काम भी करता है। रिफाह सिर्फ बिजनेस मीट्स का नाम नहीं, रिफाह सिर्फ मेंबरशिप का नाम नहीं, रिफाह सिर्फ दिल्ली ट्रैवल करने का नाम नहीं, रिफाह अपने बिजनेस पर गहरी निगाह डालने का, अपने आसपास और अपने इर्द गिर्द बैठे हुए साथियों से फायदा उठाने का और इस सफर में आगे बढ़ने का नाम है। अल्लाह रब्बे करीम हम सबको इस सफर में आगे बढ़ाए, आगे ले जाए। रब्बे करीम हमारे अज़्म और हौसलों में दम भर दे। अल्लाह रब्बे करीम आपके यहाँ जुड़ने को कबूल फरमाए और जो उम्मीदें आप लेकर आए हैं उससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बे करीम डोल भर भर कर आपके दामन की कुशादगी के साथ को इनायत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।